السلام علیکم ناظرین، حافظ محمد عمران وقت اس کے لاہور اسٹوڈیو سے گیم بیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بات ہم کریں گے پاکستان میں مقابلہ ویسٹ انڈیز اور 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے۔ اس میچ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر اظہر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سابق فرسٹ کلاس کرکٹر، آپ کرکٹ آرگنائزر بھی ہیں، شعیب حبیب۔ السلام علیکم شعیب بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خان صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مقابلہ؟ ویسٹ انڈیز 93 رنز پہ 2 آؤٹ ہیں اور پاکستان نے پہلی اننگز بھی ڈکلیئر کی، دوسری اننگز بھی ڈکلیئر کی، فالو آن پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ فالو آن نہیں کروایا جاتا۔ ایک لمبا ٹارگٹ اور بڑا ٹارگٹ ویسٹ انڈیز کے سامنے پڑا ہوا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اوور آل یہ دونوں پاکستان کے اننگز کو اور اب جس طرح سے ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ چل رہی ہے؟ آئی تھنک کہ پہلے فالو آن پہ بات میں کر لوں۔ حفصہ آپ نے ذکر کیا فالو آن کا، تو مصباح کی کیپٹنسی میں 6 دفعہ ایک ایسی صورتحال سامنے آئی جو کہ مصباح فالو آن کروا سکتے تھے، مگر انہوں نے ان کا جو پاسٹ ٹریک ریکارڈ ہے فالو آن کے تناظر میں اس میں انہوں نے فالو آن نہیں کروایا اور پریفر کیا بیٹنگ کرنے کو۔ اب پاکستان ٹیم نے جو دوسری اننگ میں ڈکلیریشن کی ہے، پروبیبلی ان کے نظر میں اب جو ہدف ہے وہ میرے خیال 400 کتنا ہے، 450 کے قریب، 450 رنز۔ تو حفظ 450 رنز جو پاکستان ٹیم نے دیے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پچ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اسٹرینتھ ہے ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ٹائم بار جو ہے آپ دیکھیں کہ لنچ کے فوراً بعد ڈکلیئر کر دیا پاکستان نے، تو 2 سیشن جو تھے وہ آج کے اور 3 کل کے 5 سیشن، تو اگر آپ نمبر آف اوورز لیں تو 90 پلس جتنے بھی بچتے ہیں 150 اوورز، ہاں جی، تو وہ جتنے بھی اس وقت پاکستان ٹیم کا جو تھنک ٹینک تھا انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈیز کو میکسیمم اوور میکسیمم ٹائم دو تاکہ کوئی ایسی عذر یا وجہ نہ رہ جائے کہ یہ میچ جو ہے ڈرا کی طرف چلا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ لاسٹ ٹیسٹ میچ جب اختتام پذیر ہوا تو اس کے صرف 12 اوور رہتے تھے اور پاکستان نے ویسٹ انڈیز ٹیم کو آؤٹ کر لیا۔ تو کیپٹن اور جو ہماری ٹیم مینجمنٹ ہے انہوں نے یہی سوچا کہ جب تک ہم ان کو میکسیمم ٹائم، کیونکہ یہ پچ جو ہے نا سلائٹلی بہت سلو ہے، باؤنس بھی لو ہے، اور ابھی اس میں وہ ویئر اینڈ ٹیئر اور وہ شارپ سپن جو ہے یا ریورس جو ہے وہ ہوا پہلی اننگ میں ہوا، اور ابھی بھی ریورس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا میرے خیال آج جتنے بھی 20-25 اوورز ہوئے ہیں نئی گیند کے ساتھ، تو اس کے بعد یہ ریورس ہونا شروع ہوگا، اور خاص طور پر راحت اور سہیل خان دے آر ویری گڈ ایکسپوننٹ آف ریورس سوئنگ۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کے خیال میں ایک مصباح کی ہسٹری ہے یا وہ جب فالو آن کی بات آتی ہے تو مصباح کا زیادہ رجحان یا اس کا زیادہ توجہ بیٹنگ کرنے کی طرف ہوتی ہے، اپنی فالو آن کی طرف وہ نہیں جاتے ہیں، اور جو ڈکلیریشن ہے پاکستان کا سیکنڈ اننگز میں وہ اس لیے آج کے 2 سیشن دیے گئے ہیں کہ انف ٹائم اور انف رنز آن بورڈ رکھے تاکہ کسی بھی قسم کی پاکستان کے نقطہ نگاہ سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ 457 ویسٹ انڈیز کر جائے، دیکھیں یہ تو پھر ریکارڈ کریں گے نا دنیا میں، تو یہ بھی ایک بریو ڈکلیریشن بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مصباح نے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا ہے، کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ نظر آ رہا ہے ان 2 ٹیسٹ میچز میں اس میں ہمیں ابھی تک ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جو ہے وہ یہ ہدف حاصل کرنے میں کسی اننگ میں ابھی تک کامیاب نہیں رہی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہائیسٹ رنز انہوں نے، اور ویسے بھی ان کی بیٹنگ میں اتنی جان اس سیریز میں نظر نہیں آئی کہ اس سے یہ توقع کوئی کر لے کہ یہ 450 سے اوپر کا ٹارگٹ جو ہے وہ لے لیں گے، وہ اچیو کر سکتے۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، دیکھیں ابھی جیسے خان صاحب نے بولا میں تھوڑی سی اس میں ایڈ کر دوں، 6 ٹیسٹ کی انہوں نے مصباح کی مثال دی، میرے خیال میں یہ پاکستان کا 14 یا 15 ٹیسٹ میچ ہے جس میں انہوں نے فالو آن نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں مائنڈ سیٹ پرانا چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تک ابھی یہ پاکستان کی اس میچ کا تعلق ہے اور ویسٹ انڈیز جو اتنا ہم کو اچھا نظر نہیں آ رہا، میں نے پہلے دن بھی بولا تھا، میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ اتنے عرصے بعد پاکستان نے بڑی بیلنس ٹیم کھلائی تھی، بڑی کنڈیشن کے حساب سے صحیح ٹیم کھلائی تھی، تو اس وجہ سے ویسٹ انڈیز بہت خراب کھیلا، پاکستان کی ساری کمپلیٹ ایک ٹیم تھی، ہر ڈپارٹمنٹ میں اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، اس وجہ سے ایزی لگ رہا ہے۔
जहाँ तक पिच की बात है, पिच के मुताबिक मैंने फर्स्ट डे भी बोला था, स्टिल अब भी कह रहा हूँ, अगर ये छठे दिन भी जाए ना तो पिच में कोई खराबी नहीं। अगर ये छठे दिन भी चली जाएगी तो ऐसे ही खेलती ऐसे ही रहेगी। खेलते रहेंगे। अच्छा, जो फॉलो ऑन की बात खान साहब ने भी की है, पिच के हवाले से भी बात की है, इनका ये मानना है कि डिक्लेरेशन पाकिस्तान का एक ब्रेव डिसीजन भी है, दोनों चीज़ों को देखते हुए। आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा टाइम दिया पाकिस्तान ने? आज का भी सिर्फ एक सेशन खुद खेला है, 2 सेशन वेस्ट इंडीज़ को दे दिए, कल की पूरे का पूरा दिन है, तो 400 साढ़े 400 से ज़्यादा रन का जो हदफ है उसको पाकिस्तान ने डिफेंड करने के लिए या उसके अंदर आउट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे दिया? बिल्कुल, खान साहब ने सही बोला। ये और इन केस अगर वो ये रन्स कर लेते हैं तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है, फिर तो रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। तो पाकिस्तान ने मतलब सारे उन्हीं के हाथ में, उनके कोर्ट में बॉल दे दिए। ठीक है, मतलब वो ड्रॉ भी नहीं कर सकते, वो ड्रॉ भी नहीं, या तो वो जीतें या हम जीतें। और अगर वो ये रन जिस तरीके से परफॉर्मेंस होती चली आ रही है, नाम तो मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज की टीम का है, परफॉर्मेंस इनकी जस्ट लाइक चाइना। यही शोएब भाई, क्या ये मेरी यार, आपने मुझसे सवाल करा मेरे भाई, मैंने आपको ये जस्ट लाइक चाइना की टीम को आपने कहाँ क्रिकेट खेलते तो वो आप ही लोग मतलब हर जगह ये यही तो बात ऐसे लगता है जैसे न्यू कराची की टीम है। चले। नहीं यार, न्यू कराची की बेटा। वैसे शोएब भाई का तो ये दिल करता है कि दुनिया की जितनी भी टीमें हों उनमें हर टीम में एक खिलाड़ी कराची का जरूर हो। यार मैं ये कहता हूँ, दुनिया की जो भी टीम हो, हर एक नहीं 4 पाकिस्तानी है। अच्छा शोएब भाई, जो बात पिच के हवाले से है, आपको लगता है कि आसान पिच की वजह से पाकिस्तान ने रन ऑन बोर्ड ज़्यादा किए हैं, या वेस्ट इंडीज़ अगर हमें कमज़ोर नज़र आ रही है तो वो बैटिंग में ही कमज़ोर नहीं है, वो बॉलिंग में भी उतनी ही कमज़ोर हैं? अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब पिच, मैंने पहले भी बोला, पिच बहुत आसान, मतलब इसमें थोड़ी सी टेक्निक चेंज करनी। ये पिच इस टाइप की है, इसमें बैट एंड पैट आउट नहीं होगा। आप जितने क्रॉस शॉट मारेंगे उसमें रन्स मिलेंगे, और आप जितना स्टेडी खेलेंगे ना उतनी लंबी इनिंग्स खेलेंगे। तो अभी मतलब सिवाय ब्रावो के किसी ने लंबी इनिंग्स नहीं खेली इस मैच में। अभी सैमुअल्स का चांस है कि लंबी ये 150-100 कर सकता है, माविन सैमुअल्स। हाँ, पिच स्टिल अगर आउट होगा तो खुद होगा या कोई अनप्लेबल हो जाए, अनप्लेबल हो जाए। पिच में से कोई उसको फेवर किसी भी बॉलर को। मैं कहता हूँ ना, स्लो पिच 2-3 टाइप की होती है। ये ड्राई पिच है, ये फ्लैट पिच नहीं है। ये ड्राई और फ्लैट में क्या फर्क होता है? हाँ, ड्राई में ये मतलब खुश्क हो जाती है तो बहुत स्लो जाती है, फिर स्पिनर्स को बहुत मेहनत से गेंद करनी। जो पिच फटना शुरू हो जाती है ये ये फटेगी जरूर लेकिन नुकसान नहीं होगा, मतलब बहुत स्लो स्पिन होगी जो मैनेजेबल है। इस टाइप की पिच पे क्रॉस शॉट पे रन्स बनेंगे, क्रॉस शॉट पे। और स्टेडी आप खेलते ना, क्यों बॉल किक विक करती नहीं, नीचे रहती है, कोई बैट एंड पैड वगैरह आउट। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसका दोनों को फायदा हो सकता है, दोनों को। ये मतलब अब स्पेशली बॉलर को बड़ा नुकसान होता है, बड़े जोर से, जिसकी शोल्डर में जान होगा वो गेंद करेगा। जैसे मिसबा ने इसको खिलाया, क्या नाम है, जुल्फिकार बाबर। मैंने तो बोला ना, मुझे मिसबा ने जितनी कप्तानी करी होगी, मुझे उसकी बेस्ट कप्तानी लगी, बेस्ट चॉइस लगी। हाँ, मिल गए हैं मिसबा के साथ, मिल गए। लगा आप तब मैं मिसबा तो नहीं, चलो मैं पूरे ये मिकी आर्थर की वजह से कर रहे हैं सारा, क्योंकि मिकी आर्थर इस प्लान में इस प्लान में कोच भी इन्वॉल्व होगा, कोई मिसबा खेला और कोई भी शख्स अगर कराची किंग्स से उसका ताल्लुक है तो शोएब भाई उसकी जरूर हिमायत करेंगे। वो क्यों भाईजान? कराची किंग क्या मुझे कुछ वो बोलने के पैसे दे रहा है? या जो नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं रियलिटी पे बात करता हूँ, गलत बात होगी। आपने अपने प्रोग्राम में देखा, आपने अपने प्रोग्रामों में देखो, इलियास साहब मेरे साथ बैठे हुए थे कि मैंने ये करा वो करा, वो जबकि वो चीफ सिलेक्टर ही गलत बने थे। और वो आजकल भी उनका नाम किसी चीज में आ रहा है, किसी भी जुल्म करेगा अगर उनको लेगा तो। कमाल कर रहे हैं आप, उनके साथ खाने खाते रहे और खाना कोई मेरी कीमत है? नहीं, मेरी नहीं, क्या उनको वो ये उनको कहते नहीं, वो सिलेक्टर ही गलत बन गए यार। आप उनकी एज देखें ना, उनका लिहाज सब क्या हो गया? कोई पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, फजूल में टाइम जाया करना, गलत करेगा अगर पाकिस्तान अब उसको। अच्छा चलिए, इस पे आपसे दोबारा आपके साथ इस पे बात रखी जाएगी। अच्छा खान साहब, असद शफीक, समी असलम, अजहर अली, तीनों बल्लेबाजों ने उम्दा बैटिंग की है। किस हद तक आपको लगा है कि सारे का सारा क्रेडिट इस पिच को दे देना चाहिए, या फिर आपका टेम्परामेंट का तो टेस्ट ऑल द टाइम रहता है जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो सारे का सारा क्रेडिट जो है वो या जो उन्होंने रन्स किए हैं वो इस वजह से डाल दिए जाएं कि जो पिच बहुत आसान था तो रन्स उन्होंने कर लिए? नहीं हाफिज साहब, किसी भी लेवल की क्रिकेट हो, इवन कि आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हो, आप कॉलेज क्रिकेट खेल रहे हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो,
टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, इंटरनेशनल वनडे खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, परफॉर्मेंस डज काउंट अ लॉट. ठीक है. और देखें आप क्यों खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट मैचेस क्यों खेलते हैं? इसलिए कि आपका नाम स्टैटिस्टिकली रिकॉर्ड बुक्स में आपका नाम आए. ठीक है. और नाम किस तरह आ सकता है जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे. और जो भी कोई रन्स करता है, टेस्ट मैच एक ऐसी गेम है कि इसको तमाम लोग फॉलो करते हैं और हमेशा याद भी आपको टेस्ट मैचेस ही रहते हैं. तो आई थिंक ये एक टेस्ट मैच था. अजहर अली ने, समी असलम ने, असद शफीक ने, जिस तरह आपने जिक्र किया कि उन्होंने 50-50 रन्स बनाए हैं, तो एक आदमी जब अच्छे टच में है और वो परफॉर्म कर रहा है, रन्स कर रहा है, तो उसको फिर अपने आप से भी एक लड़ना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है, रन्स बनाने पड़ते हैं, और रिकॉर्ड बुक्स भी आपका फिर साथ दे रही होती हैं. तो यू डू नॉट हैव टू लूज एनीथिंग. अब जब आप रन्स करेंगे तो आप एक नई सीरीज के लिए जब जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा आपकी किटी में, क्योंकि रन्स होंगी, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा. आपको पता है कि मैंने इतने रन्स किए हुए हैं, और मैं अगर इनिशियली एक नए मुल्क में जाके सर्वाइव करता हूं तो आई वुड बी इन अ पोजीशन टू स्कोर रन्स फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई कंट्री एज वेल. ब्रैथवेट के अभी बैटिंग कर रहे हैं, 57 रन पर नॉट आउट हैं. इनके फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड खासे अच्छे हैं. कोई 30 लगभग 30 निस्फ सेंचुरी हैं, 15-17 इनकी कोई सेंचुरियाँ हैं, 42 की एवरेज अभी इनके स्टैट्स दिखा रहे थे. आप किस तरह से देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की इस टीम में अगर कोई बैट्समैन मज़ाहमत करता हुआ नज़र आता है तो क्या उसको ये कहा जाएगा कि ये वन मैन शो हो रहा है, या फिर अभी उनमें इतनी अहलियत है कि वो इस मैच में भी बाउंस बैक कर सकते हैं? उन्होंने किया, पिछले मैच में भी है. देखिए इस मैच की जो कंडीशंस हैं और जो अभी तक जो सीरीज़ खेली गई है, पाकिस्तान ने आउट क्लास खेला है. पाकिस्तान ने आउट क्लास खेला है, तो इस वजह से वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, जिसको हम मतलब मैंने भी अभी कह दिया, जस्ट लाइक चाइना वगैरह. क्रेडिट जाता है पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान की बॉलिंग को, पाकिस्तान के मैनेजमेंट को. इस तरीके से खेला कि वेस्ट इंडीज़ कुछ नज़र नहीं आ रही. अब ये जो अभी भी कंडीशन है ना, मैं कह तो रहा हूँ हाफिज कि बहुत आसान है. क्यों नहीं वेस्ट इंडियन बैट्समैन रन्स कर पा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है. अगर देखें ना आप इनको पाकिस्तान. अच्छा, एक कथा कलामे की मादर चाहता हूँ. अजहर खान साहब, वेस्ट इंडियन रन्स क्यों नहीं कर पा रहे? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो उनके ड्रेसिंग रूम का माहौल है या उनके जो अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात हैं, बड़ी आइडियल सी सिचुएशन नहीं है, ये चीज़ें असरअंदाज होती है जब आप मैदान में जाते हैं? तो देखिए हाफिज साहब, जब भी आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एक प्राइड होती है आपके पास था. आप अपने एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बड़ी कम्पेटिटिव क्रिकेट है. बिल्कुल नो डाउट कि जो हालात वेस्ट इंडीज़ के हमें नज़र आए कि एक दिन पहले उन्होंने अपना कोच जो है उसको चेंज कर दिया. अब जो कि लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे, तो क्या वो इस मौजूदा टीम से अगर आप कंपैरिजन करें प्लेयर से, तो जो बाहर बैठे हैं, आर दे गुड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेस्ट इंडीज टीम? अब अगर इनको मौका मिला है तो शुएब भाई ने बिल्कुल बात सही कही है कि अब इनको इस पिच के लिहाज से ये जो कंडीशंस हैं, यहाँ जैसे पाकिस्तान की बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, मगर आपने आखिरी मैच में फाइट दी, आखिरी पहले टेस्ट में, और आखिरी का सेशन और आखिरी दिन, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कैप्टन जो हैं उनमें वो जिटरीपन नजर आया, उनमें वो एक अनसर्टेनिटी नजर आई कि कहीं ये मैच उनके हाथ से निकलना जाए. 100 रन रह गए थे, 4 विकेटें उनकी बाकी थी. ऐसे हालात में आप जब दूसरे टेस्ट मैच में आते हैं तो अब सिचुएशन, और सिर्फ 56 रन का मार्जिन है फतह का, और 12 ओवर थे, वो मैच ड्रॉ भी हो सकता था. ठीक है. और ब्रावो की विकेट वाज दी टर्निंग पॉइंट. अब यहाँ पर बगैर फाइट किए हुए, बगैर एक हिम्मत दिखाए हुए, एक लगन के साथ, तनदही के साथ, आप जब तक पाकिस्तान की टीम को पहली इनिंग्स में भी पाकिस्तान ने 90 ओवर्स किए, कम से कम 100, 110-12 ओवर्स तो खेलो, ताकि पता चले कि आप सिर्फ टेस्ट मैच खेलने नहीं आए, आप मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो आपके ख्याल में वो असर पड़ा है टीम का, कि जो टीम का बैलेंस आउट हुआ है, जो इंटरनली उनके इश्यूज चल रहे हैं, उससे फर्क पड़ा है? नहीं हाफिज साहब, इनकी टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंसेस बहुत नीचे चली गई हैं. आप देखें कि इवन अगेंस्ट लाइक बांग्लादेश टीम, उनके बिल्कुल इनके पॉइंट्स करीब करीब हैं. तो वेस्ट इंडीज़ पर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, जो कि अपनी टेस्ट क्रिकेट को नहीं उठा सके. T20 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता, मगर जब ये
जीत कर पाकिस्तान के साथ खेलने के यहाँ आए हैं, तो आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम ने बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया और सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान टीम ने 3 T20 के मैचेस और वनडे जीती। अच्छा खान साहब, कथा कलामी की मदद चाहता हूँ, हमने बात अंपायरिंग पर भी करनी है। ये सिर्फ पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ नहीं, दुनिया भर में जितनी भी अंपायरिंग हो रही है उसके ऊपर खासे लोग हैरान भी हैं और एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से रिव्यू के ऊपर जा रहे हैं। अंपायरिंग पर बात भी करेंगे और हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर ICC के पैनल में शामिल, एलीट पैनल में शामिल साबिक पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम जी असद भाई, बहुत शुक्रिया। असद भाई, मुझे ये बताइएगा कि अजहर खान साहब और शोएब हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कल भी बात की थी, अंपायरिंग की, आज फिर उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहते हैं। मेरे ख्याल यहीं पे ख़त्म भी हो गई थी बात कल। ये अंपायरिंग का मयार पूरी दुनिया में इस वक्त को इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा जितना होना चाहिए, जितना लोग तवक्को करते हैं। आपको क्या वजह नज़र आती है कि DRS की वजह से जो फील्ड अंपायर हैं वो रिलैक्स कर गए हैं, या फिर DRS में कुछ कमी है जिस वजह से दोनों को मसाइल का सामना करना पेश आ रहा है? आपकी इस हवाले से क्या राय है? वैसे एक तो आपने आज से 3-4 साल पहले बड़ा हाई स्टैंडर्ड देखा है अंपायरिंग का। हमने जिस टेन्योर में अंपायरिंग की है उसमें हमारे एलीट पैनल में 6-7 बड़े टॉप अंपायर थे और उनका स्टैंडर्ड भी बड़ा हाई था। अब उस DRS इनफैक्ट अंपायर को हेल्प करता है, और अगर उसकी मदद से अंपायर मैच में डिसीजन मेकिंग को उसकी रेशियो अच्छी होती है तो DRS इनफैक्ट मैच में भी हेल्प कर रहा होता है। मगर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और ये टीमों में भी मैंने बड़ी खामियां देखी हैं, और अंपायरिंग का मयार अब आपके सामने ही है। अच्छा, आपके ख्याल में जो स्टैंडर्ड सेट किए थे जो आज से चंद साल पहले थे, आज आपको वो मयार अंपायरिंग का दुनिया भर में नजर नहीं आ रहा? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। असल में मैंने आपको बताया ना, उस टेन्योर में 10 में से 7-8 अंपायर बहुत अच्छे थे और बड़े एक्सपीरियंस अंपायर थे। फिर हमने भी बहुत मेहनत की उस दौर में, मगर आजकल जो 10 मुल्कों का जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज है उनका जो डोमेस्टिक लाइन ड्रॉप हो गई जी। हम दोबारा रब्ता करते हैं असद रऊफ साहब से और इसी हवाले से मज़ीद बातचीत भी करेंगे कि आगे क्या ऐसी वजूहात हैं कि क्या लोग ICC पर सवाल करें कि जो मुतबादल अंपायर्स हैं वो इतने अच्छे तैयार नहीं थे बर वक्त, जब ये जितने टॉप अंपायर्स का नाम असद रऊफ साहब ने लिया है, जिनमें रूडी कर्टसन है, जिनमें साइमन टफल है, असद रऊफ हैं और उसके साथ साथ बिली बाउडन, ये सारे के सारे अंपायर्स जो हैं इनके स्टीव बकनर, इवन खान साहब, अलीम डार तो अभी खैर कर रहे हैं, लेकिन ये सारे अंपायर्स की मौजूदगी में नीचे से कुछ इतने अच्छे अंपायर आए नहीं हैं। इस हवाले से खान साहब आपको लगता है? मैं थोड़ा सा हाफिज साहब देखें, जब DRS इस्तेमाल होता है तो जब रेफर होता है, शोएब भाई से भी कल ये बात हो रही थी कि रेफरल में जब TV अंपायर के पास डिसीजन जाता है तो उसके पास सबसे पहले देखने के लिए एक तो लीगल डिलीवरी है, ठीक है, पाँव उसने, उसके बाद कि वो बॉल अगर कार्पेट के विद इन द स्टंप्स पड़ा है वो है, बॉल प्लेड हुआ कि नहीं हुआ, उसकी हाइट कितनी थी। आपने जब ये जज करना है तो आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कंप्लीट नहीं है इस सीरीज में, ठीक है। आपके पास DRS को इमैकुलेट करने के लिए आपके पास सेंकोमीटर नहीं है, आपके पास हॉटस्पॉट नहीं है, और आपके पास जूम वो जो है ना उनका वो नहीं है। ये 3 बड़े मेजर एक स्लिको नहीं है, हाँ जी, ठीक है, हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है जी, और आपके पास वो जूम करने वाला जो है ना, ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब जितने भी डिसीजन हुए हैं सेंकोमीटर तो नहीं है। अब TV अंपायर ने शोएब भाई सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पर और सेंस ऑफ जजमेंट पर उसने कहा कि ये बॉल प्लेड हुआ है कि नहीं। जिस तरह फील्ड अंपायर अपने सेंस ऑफ जजमेंट के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर फैसला देता है, उसी तरह TV अंपायर इस सीरीज में एग्जैक्टली बिकॉज ही इज नॉट सर्टेन अबाउट इट कि अगर उसके पास सिंकोमीटर हो तो वो आपको ग्राफ बता देता है कि ये बॉल जो है बल्ले से लगा कि नहीं लगा, वहां पे बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली वो हॉटस्पॉट में भी आपको क्लियर ही नजर आ जाता है कि वो एज जो है उसका स्पॉट आपको नजर आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जिस तरह चौधरी सिद्दीक साहब को देख के इनका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है तो वो आपका ना, तो वो
آپ نے چیک کرا میرا بلڈ پریشر کا بھی؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی دیر کے بعد تمام ممالک جو ہیں وہ ڈی آر ایس پر متفق تھے اور کروا رہے. اب پہلی دفعہ انگلینڈ اور انڈیا کی سیریز جو ہے اس میں ڈی آر ایس جو ہے نا وہ استعمال ہوگا. اب یہ کہا جاتا ہے جی شعیب بھائی کہ یہ بہت مہنگا ہے جی ایکوپمنٹ, یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو بھئی آئی سی سی کس مرض کی دعا ہے؟ آئی تھنک آئی سی سی شوڈ کم آؤٹ کہ ٹھیک ہے جی یہ اگر ہاٹ سپاٹ ہے یا سنکومیٹر ہے ہم آپ کو یہ پرووائڈ کر کے دیتے ہیں, اور یہ تمام سیریز میں یہ مینڈیٹری ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب اس سلسلے میں جمپ ان کرنا چاہیے آئی سی سی کو بھی. دیکھیں جہاں پر آپ کو پرسنٹیج جو ہے ڈیسیشن کی وہ جتنی کم ہوگی اتنا آپ اور میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایک فیئر ڈیسیشن دیکھ سکیں گے. تو فیئر ڈیسیشن کب آئے گا؟ جب آپ کے پاس ایکوپمنٹ ٹیکنالوجی پوری ہوگی, وہ تمام ٹولز پورے ہوں گے جن کی بنیاد پر تھرڈ امپائر نے کوئی فیصلہ ٹیکنالوجی کی مدد سے دینا ہوتا ہے. صرف ریویو میں جا کے ری پلے دیکھ کر فیصلہ دینا وہ. اب اس میچ میں کل کے کھیل میں شعیب بھائی 6 ڈیسیشن ریفر ہوئے, 6 میں جو ریجیکٹ ہوئے وہ آؤٹ دیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کو نٹ آؤٹ دیا, جو نٹ آؤٹ تھے ان کو آؤٹ دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی پوری ہوتی تو میں جو انگلینڈ اور جو بنگلہ دیش اور 26 ڈی آر ایس ڈیسیشن بینگ ریفر ٹو دا ٹی وی, اسپیشلی وہ ایگزیکٹلی 6 دفعہ موئن والی 6 ٹائم اس کو دوبارہ نیو لیز آف لائف ملی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب اگر اتنا پیسہ انوالو ہو گیا ہے اس کرکٹ میں تو آئی تھنک کہ آئی سی سی شوڈ تھنک کہ ڈی آر ایس تبھی لگے گا جب تمام ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی. سب کی سب چیزیں ہیں جب جو ڈی آر ایس جو کہ ڈیسیجن ریویو سسٹم ہے, اگر آپ یہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اس کی تمام وہ ضروری ٹیکنالوجی کی چیزیں وہ پوری کرنا پڑیں گی, تب اس کا فائدہ ہے, وگرنہ مزید تنازع ہے. اب نا حافظ صاحب ہاٹ سپاٹ جو تھا انگلینڈ میں, وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ بال جو تھا وہ ہاٹ سپاٹ پر واضح وہ سپاٹ نہیں ہوتا تھا. وہ کیوں کہ شعیب بھائی جو بلے کی جو ایجز ہے نا اس پر ٹیپنگ کی ہوئی تھی, ٹیکنیکل بات اور ٹیپنگ کی وجہ سے ہاٹ سپاٹ پہ وہ سپاٹ نہیں آتا تھا. تو پھر اب آبویسلی اس کا بھی انہوں نے کوئی توڑ ضرور سوچا ہوگا. تو آئی تھنک کہ یہ جو انگلینڈ اور انڈیا کی سیریز آئے گی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی, کیونکہ اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو انڈیا فرسٹ ٹائم اپنی جو بائی لیٹرل سیریز ہے وہ ڈی آر ایس پر جا رہی ہے. جی شعیب حبیب صاحب. خان صاحب نے کمپلیٹ تو کر دیا, اب اس پہ کیا بات کریں؟ نہیں آپ کوئی نہیں شاباش پھر کہہ دیں آپ. ویل ڈن خان صاحب, ویل ڈن. اچھا یہ جو ڈی آر ایس ہے ڈیسیجن ریویو سسٹم, آپ کے خیال میں جو بات اسد کر رہے تھے کہ اوور آل پوری دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امپائرنگ کا معیار وہ نہیں ہے جو آج سے چند سال پہلے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی امپائرنگ کا معیار گرا ہے, اور اگر امپائرنگ کا معیار گرا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے ہلکا سا اشارہ جو ملکوں کی ڈومیسٹک کرکٹ میں امپائرنگ کا ہے وہ شاید پاکستان میں پوری دنیا میں ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کے خیال میں. دیکھیں حافظ صاحب میں اس میں چھوٹی سی بات کر دوں گا, جب ایک دم اتنے گریڈز جاتے ہیں نا کسی بھی فیلڈ میں تو یہ ساری پرابلمس آتی ہیں. تو اب اس کو کور ہونے میں میرے خیال میں ٹائم لگے گا. میں اس کو ایک چھوٹی سے اس میں ختم, مطلب آپ کے خیال میں یہ سارے گریڈز امپیکٹ ہیں. مطلب جب سے ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے اگر ریٹنگ دی جائے تو یہ سارے ٹاپ تھے, تو ایک دم یہ جو خلا پیدا ہوا ہے نا تو اس اسٹینڈرڈ کے ابھی تو نہیں آ سکتے, اس میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں بڑے امپائروں کی یکدم سے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے وہ اس نقصان کی صورت میں سامنے آ رہا ہے اور اس میں کچھ وقت لگے گا, فوراً ہو نہیں جانا. آپ کو لگتا ہے خان صاحب؟ نہیں, یہ اس میں شعیب بھائی کی اس بات میں گہرائی اس لیے ہے کہ میں اس کو اس تناظر میں لیتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 گریٹ پلیئرز ہیں, یونس خان ہیں اور مصباح الحق. جب یہ اللہ نہ کرے کہ 2 سال 1.5 سال کے بعد اگر یہ جاتے ہیں تو کیا ہمارے پاس کٹی میں وہ کوالٹی آف پلیئرز ہیں کہ ان کو ریپلیس کر سکیں؟ اسی طرح امپائرنگ کا انہوں نے ذکر کیا, جتنے بھی امپائرز ہیں, سائمن ٹاپفل رہا, اسٹیو بکنر رہا, روڈی کٹسن رہا ہے, بلی بارڈن رہا ہے, ڈیوڈ شیپرڈ رہا ہے, اسد روف گیا ہے, علیم ڈار اس وقت کر رہے ہیں, دھرما سینا جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں. تو کیا آپ کے پاس کوالٹی آف امپائرز وہ تھے کہ ان کو ریپلیس کر سکیں؟ تو یہی جو ہے نا
तजर्बे के इवन साथ। पाकिस्तान के पास असद रऊफ और अलीम डार के बाद उस सतह के अंपायर अभी तक नहीं है। नहीं, हमें एहसन रजा वगैरह हाँ, देखें, हाँ। दे आर डूइंग Establish हो रहे हैं। मतलब वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं, वो जब भी मैचेस वही मैंने कहा, अभी उनको establish टाइम हो रहे हैं। हाँ, हाफिज टाइम साहब, लग रहा है, बस मगर टाइम का उस है। स्टैंडर्ड में आने के हाँ। लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम हमें कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए इन बच्चों को जो कि आपके T20 और वनडे में जो मैचेस करते हैं, दे शो देयर पॉजिटिविटी इन बॉडी लैंग्वेज, उनके जो डिसीजंस हैं वो भी काफी इमैकुलेट हैं, एंड दे बीन अप्रिशिएटेड बाय आईसीसी एज वेल। ठीक है। और स्पेशली एहसन रजा अहमद coming है, हाँ। शोजेब फजल रजा रजा, और अहमद शाद, दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब फॉर देमसेल्फ एंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक मरतबा फिर एहसन रजा का नाम ले दें। ग्रेट यार, नजर आ रहा है। देखो ये तो टीम लाइव मैचेस आते हैं, अगर मैं बोल दूंगा तो लोग नहीं कहेंगे कि बोंगी मार रहे हैं, ये तो सब नजर आता है ना। अच्छा, इस वक्त मैच चल रहा है, मेरा ख्याल है वापस उसी पे जाते हैं। आपके फेवरेट मोहम्मद नवाज बॉलिंग करने के लिए आए हैं, जिसके बारे में आपने कहा था कि इनको संभाल कर रखा हुआ है सेकंड इनिंग्स के लिए। यार मेरे तो माशाल्लाह जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, मेरे फेवरेट्स ही हैं। अच्छा। मैंने मतलब उसमें बात हो रही थी कि उसको गेंद नहीं दी गई, तो मैंने उस नज़रिए से, मैंने तो पहले टेस्ट में भी इतना शोर मच रहा था, एक साहब ने तो ये भी कह दिया था यार ये मोहम्मद नवाज है, नवाज शरीफ नहीं है। अच्छा। वो हमारे सिद्ध साहब ने, तो वो तो अभी नया नया, और फिर बेसिकली तो वो ऑलराउंडर भी, अगर यहाँ नवाज 1 विकेट दे देगा, 2 विकेट दे देगा, वो बोनस है, उसका अपना काम पूरा हो गया। उसका अपना काम पूरा हो गया। अभी तो वो बेचारा आया है, अभी तो आया है। अगर मैं उससे ये एक्सपेक्ट करूं, या कोई इवन अजहर खान साहब भी नहीं करें, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी मतलब 2-5 दफा 5 आउट नहीं करे, तो टेस्ट में कैसे एक्सपेक्ट, और फिर इतनी इजी पिच, इतनी इजी पिच। जहाँ पे सपोर्ट नहीं है। मगर इससे देखें आप कि पहले मैच में 4 विकेट ली हैं, यही और बड़े क्रूशियल मौके पर उसका ब्रेक थ्रू हासिल और किया। अभी फर्स्ट इनिंग में 4 ओवर करे, अभी पहला ओवर करने आया है, तो ग्रेजुअली करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, देख लें। आज मैं आप अली भाई को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये किस उसमें में आपको कोई साथ में वो समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का पेयर नहीं बना? नहीं, तो आज हम दोनों ही सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हैं ना। 4 गोल खान साहब ने कर दिए, 2 मैंने कर दिए, 6 हम मैच जीत गए। अच्छा, अजहर खान साहब, समी असलम, अजहर अली, ओपनिंग पेयर, एक अच्छा स्टैंड फिर पाकिस्तान को मिल गया है, तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त समत में चल रही है पाकिस्तान की ओपनिंग पेयर? देखिए हाफिज साहब, इस टेस्ट मैच के बाद एक टेस्ट मैच और है, उसके बाद आपने न्यूजीलैंड फ्लाई ओवरसीज करना टूर पर चल जाना, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास अब परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस को ख़त्म करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड की अब ज़रूरत नहीं है। अब आपने जो अपने टॉप ऑर्डर है, अब असद शफीक भी नंबर 3 पर बैटिंग करते आ रहे हैं, और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी उन्होंने टेस्ट मैच में नंबर 3 पर बैटिंग की, और अब वो पाकिस्तान के थिंक टैंक और कैप्टन की गेम प्लान के मुताबिक वो अजहर अली, समी असलम और असद शफीक, ये 3 जो है ना, ये तो हमारे हैं। अब शुएब भाई ने जो कल बात की थी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपको बेंच स्ट्रेंथ पर भी और एक एक्सपीरियंस्ड ओपनर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कौन है? उसमें इन्होंने 3-4 लड़कों के नाम लिए थे, शान मसूद है, अहमद शहजाद है, मोहम्मद हफीज़ है, खुर्रम मंजूर है। तो ये सारे जो है ना इस वक्त उस रेस में मौजूद हैं। अब ये इंजमाम और सिलेक्शन कमेटी पर मुनहसर है कि वो इन चारों में से किसको बेहतर समझती है कि 2 टेस्ट मैच जो आपने न्यूजीलैंड में खेल लें और 3 जाके ऑस्ट्रेलिया खेल लें, तो उसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई अनफिट भी हो सकता है, तो आपके पास आपकी बेंच स्ट्रेंथ पर इतना अच्छा खिलाड़ी मौजूद है कि वो इन प्लेयर में से किसी को भी रिप्लेस कर दे। और फिर ये कि अगर कहीं आपने गेम प्लान चेंज करना है और अजहर अली को नीचे लेके आना है नंबर 3 पर, तो कौन ओपन के लिए जाएगा और नीचे से आपने फिर किसको ड्रॉप करना है? बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। शोएब हबीब साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 8 विकेटों की और वेस्ट इंडीज़ को ये मैच अब तक जीतने के लिए 344 रन की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इसी दुआ के साथ कि कल जब दोबारा हम आएँ तो ये जो बाकी मानदा वक्त बचा है इसमें काफ़ी सारी विकेटें पाकिस्तान हासिल कर ले, और कल जब दोबारा इस वक्त आए मैच का नतीजा पाकिस्तान में हक में हो चुका हो। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।